चलिए। Dear students, today I am going to start resources of India. What do you mean by resources of India? Resources of India means भारत के संसाधन. Do you understand? Yes, sir. Like soil. Soil is one of the resource, very important resource. Do you understand? Yes, sir. Soil is very important resource. Water. Water is also resource, because if there is no water, no one can live without water. No work is possible. We cannot wash, we cannot bath without water, and we cannot survive without water. Not man, not animals, and even the plants also. Forest and wildlife. Forest, we get so many things from the forest. That is also resource. And wildlife, these are all resources. Resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants or help to solve the problems. What is resource? Resource means anything which fulfill the need of human. हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? वही रिसोर्स है ना? हमें विभिन्न प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है. We require so many things, and the things which fulfill our need, that is called resource. In other words, anything which fulfills human wants or more or less it helps in solving problems are called resources. हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान जिससे होता है, all those things are called resources. For example, water is a resource, है ना? Water is resource, and it is used for drinking. What is the use of water? Drinking, washing, clothing, It is the use of drinking, irrigation, cooking. cleaning purposes, and cooking. We have so many uses of water. So that is why water is resource. In the same way, all those things which fulfill human needs or wants are known as resources. Resources makes human life simple and happy. What do the resources do? Resources make human life simple and happy. Happy. है ना? ये रिसोर्सेज हैं जो हमारे जीवन को आनंद प्रदान करते हैं, हमको खुशी देते हैं, है ना? Suppose if you have to go by walk from school to your house, home, if you go your home by walk, you will feel tired, but you have got bicycle, then you will go your home easily.
है ना? Yes. So this is a resource which helps or which solves your problem. Because by walking you become tired, but you have any vehicle, then that becomes easier. That is your resource. Primitive man was completely dependent on nature. Do you know primitive man? Adi Manav. Adi Manav has no resource. Means these facilities, he didn't have facilities because, and also he did not know how to use resources. Do you know? वो ये भी नहीं जानता था, रिसोर्स थे भी उनका भी उपयोग वो करना नहीं जानता था कि हम इनका उपयोग कैसे करें। रिसोर्स जो हमारे इस प्रकृति ने दिया है, इसका हम कैसे उपयोग करें वो जानता ही नहीं था। इसलिए बेचारा बहुत परेशान रहता था। तुम जानते हो तो जंगलों में रहा करता था, उसके पास रहने का घर नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू यूज रिसोर्सेज। नहीं, देखो लकड़ी थी, वीडियो, लकड़ी का घर बना सकता था, है ना? और बम्बू थे, जैसे घर बनाते हैं तो उपयोग कर लेते हैं, तो ये सब कर सकता था। लेकिन वो he did not know how to use them. उसको ये पता ही नहीं था कि हम कैसे इसका उपयोग करें। तो बेचारा प्रकृति के नीचे ऐसे ही वर्षा उसके ऊपर होती थी, ठंडी भी सहता था और जंगली वाइल्ड लाइफ का शिकार भी हो जाता था। वो अपने लिए घर नहीं बना पाता था, है ना? बट he faced so many problems because of his because he was knowing nothing, है ना? कुछ जानता नहीं था कि how to use resources, है ना? But now human being we have understood that how to use resources. Early man utilized एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद इंटेलिजेंस। धीरे धीरे अर्ली मैन ये जो एलिमेंट्स हैं उनका उपयोग करना सीखने लगा, सीखा धीरे धीरे, है ना? टुडे दोज कंट्रीज व्हिच हैव मोर रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एज डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस। आज देखो, जो देश जितना ही अधिक अच्छा उपयोग करना जानता है रिसोर्सेज का, वो देश क्या कहलाता है? डेवलप्ड, विकसित देश कहलाता है। सच है अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, all these countries are called developed countries. Why they are called developed countries? Because they know how to use the resources properly, है ना? और वही समृद्ध देश कहलाते हैं। जो जितना रिसोर्स का उपयोग करेगा वो समृद्ध भी बनेगा। तो resources have importance in our life as their availability indicates development. We must understand that any element of nature is a resource when it helps to fulfill human needs. तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जब मनुष्य जितना ही अधिक उनका अच्छा उपयोग करना जानेगा, समझेगा, वो उतना ही और अपने मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। Man can convert any substance or material into resources. जब कोई भी मटेरियल को मनुष्य जो है वो रिसोर्स में बदल देता है। जब मनुष्य, फॉर एग्जाम्पल, when the man did not know how to use the stone, पत्थर का उपयोग जब नहीं जानता था,
कि पत्थर को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए पत्थर बेकार था, किसी काम का नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी दिमाग, उन्होंने अपने दिमाग को लगाया और वो समझने का प्रयास किया इनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, तो आज तुम जानते हो कि पत्थर का कितना उपयोग होने लगा है। ये जिस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, ये पत्थर का उपयोग है इसमें। ये जो सीमेंट तुमने उपयोग किया, बालू उपयोग किया, ये सब कहाँ से आते हैं? ये पत्थर से। बालू भी पत्थर के कण हैं, और फिर सीमेंट जो बनाई जाती है वो भी पत्थरों को कुचल करके, पीस करके, मशीन से महीन बना के और कुछ चीजें उसे मिला करके और बनाते हैं, और वही सीमेंट देखो ये बिल्डिंग की उसी से खड़ा करते हैं, है ना। तो ये देखो यूज हुआ रिसोर्स। ये पत्थर तो पहले ही था प्रकृति में, लेकिन पहले इसका उपयोग लोग नहीं जानते थे, तो इस पत्थर की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जब इसका उपयोग समझ लिया, तो आज उसकी, जैसे खास करके कली पत्थर, सीमेंट बनाने में जो कली पत्थर होता है एक, उसका उपयोग करते हैं। तो इससे उसको मशीन से महीन बनाते हैं, और मशीन से महीन बना करके और फिर उसको पीस करके बोरियों में भर करके और सप्लाई करते हैं, वही सीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखो कितनी महंगी है आज सीमेंट, कितना उपयोगिता है उसकी सीमेंट की, है ना, बहुत उपयोगी है। तो टुडे those countries which have more resources are considered as developed and prosperous. Resources have importance in our life as their availability indicates development. We must understand that any elements of nature is resource when it helps to fulfill human needs. Man can convert any substance or mortal material into resources. To fulfill this needs, man can make the natural elements useful and valuable by his intelligence. अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए मनुष्य किसी एलिमेंट को, प्रकृति की किसी तत्व को उपयोगी बना देता है। स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज, अपनी स्किल और टेक्निकल नॉलेज, है ना, with this process the natural elements become resources. In short, we can say that natural elements become resources when man modifies them to be more useful and valuable to fulfill his needs, है ना। मनुष्य देखो किसी भी नेचुरल एलिमेंट्स को रिसोर्स में बदल देता है, अपनी बुद्धि को लगा करके वो रिसोर्स में बदल देता है, और वही उसके लिए उपयोगी हो जाता है। स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज, सो रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट बट दे आर क्रिएटेड, है ना। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने तो दिया है बहुत सारे रिसोर्स, लेकिन वो रिसोर्स हमारे लिए तब तक उपयोगी नहीं होते जब तक मनुष्य उसको अपना दिमाग उसमें नहीं लगाता। और जब मनुष्य अपना दिमाग लगा करके उसको कन्वर्ट कर देता है उपयोगी चीज में, तो फिर वो रिसोर्स बन जाता है ना। यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल। वैसे तो तुमको ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रिसोर्सेज आर एक्चुअली नेचुरल, ये नेचुरल होते हैं, है ना, मनुष्य बनाता नहीं है सब कुछ। मनुष्य अपने से कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं करता, बल्कि नेचर ने क्रिएट किया है ना, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। और natural resources are those resources which are provided by nature and are fulfilled to man, useful to man, और वो
प्रकृति बनाती है, रिसोर्सेज प्रकृति ने ही बनाया है, और उसको उसका उपयोग मनुष्य करता है ना। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मटीरियल टू रिसोर्सेज क्रिएशन मैन्स रोल इज सुप्रीम। देखो इसके क्रिएशन में, इसको उपयोगी बनाने में मनुष्य का रोल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स, और मनुष्य स्वयं एक रिसोर्स है ना। मनुष्य जो है अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि मनुष्य जब दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तभी कोई चीज को उपयोगी बना देता है, उसका उपयोग करता है। An educated, skilled and healthy man is a valuable resource for the country. An educated, जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है वह, और स्किल्ड है, एंड हेल्थी, हेल्थी भी होना चाहिए। मैन इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ए कंट्री, वो देश के लिए बहुत ही मूल्यवान रिसोर्स है। कोई व्यक्ति जो एजुकेटेड है, समझदार है ना, पढ़ा लिखा हुआ है, वह उस देश के का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर, वैसे तो बहुत लोग हैं लेकिन सभी बुद्धि उतनी काम नहीं की, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुद्धि लगा करके और अपना कंसंट्रेशन करके देखो देश को कितनी उपयोगी चीजें प्रदान किया, मिसाइल्स दिया है ना, जो जिससे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और बहुत सारी अंतरिक्ष की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे इस देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए रहा, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं, है ना। Now classification on the basis of ownership. पर्सनल रिसोर्सेज, कुछ हमारे पास पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रा। किसी के पास कोई अच्छी धन संपत्ति है, और हेल्थ देखो, ये किसी कोई हिस्सा नहीं बांट सकता इसमें। हमारा जो स्वास्थ्य है, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा चाहे सगा भाई ही हो, हमारे स्वास्थ्य में वो हिस्सा नहीं ले सकता, है ना। हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जीवन का एक अलग आनंद है, हम अधिक काम कर सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे। और जो एक मरीज होगा वो क्या करेगा, कर पाएगा, है ना। तो ये जो हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हुई, हेल्थ हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, और इसी प्रकार से और भी प्रॉपर्टी अगर है इसको पर्सनल प्रॉपर्टी में माना जाता है। When national resources, wealth of nation, जो राष्ट्र का जो संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन, वेल्थ ऑफ नेशन, जो देश की संपत्ति है, मिलिट्री पावर जैसे फौज है, और पैट्रियोटिक देशभक्त, देश के प्रति भक्ति भावना, वर्ल्ड रिसोर्सेज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। Physical and biological elements of the world for the welfare of mankind, है ना। ये जो भौतिक और जैविक संसाधन हैं, ये ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के कहलाते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इनका उपयोग मनुष्य के कल्याण में उपयोग किया जाए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है?
those resources which regenerate themselves naturally, है ना, provided that they are not subjected to wholesome destruction, that is agricultural land remains useful by using manure. अच्छा, देखो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लैंड, हम जहाँ वो जमीन जिसमें हम खेती कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, और हम जिसका उपयोग बार बार करते हैं, हर वर्ष करते हैं। देखो ये जमीनों का उपयोग जहाँ खेती हो रही है, पता नहीं कब से लोग इसका उपयोग खेती उगाने में कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। हमारे पुश्त दर पुश्त पूर्वजों ने कब से उसको उगाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम उगाते जा रहे हैं, और उनमें हम मैन्योर डाल करके, खाद का उपयोग करके, वी आर यूजिंग द लैंड, है ना। तो ये इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Some of them are renewable only so long as they are used prudently within the limits set by nature. Non-renewable resources, non-renewable होते हैं जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, एक बार उपयोग कर लिया बस। तो non-renewable resources, those resources when once used they are gone forever, that is petrol, coal, etc. तुम लोग गाड़ियों में चढ़ते हो, यस सर, पेट्रोल का उपयोग करते हो, यस, लेकिन जैसे कि हम एक जमीन में, एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें हम खेती करते हैं, इस वर्ष किए फिर अगले वर्ष भी करेंगे, फिर उसके बाद भी करते रहेंगे उसी का उपयोग, और उससे हम हर वर्ष फसल उगाते रहते हैं। लेकिन हम पेट्रोल अगर 5 लीटर हमने भराया अपनी गाड़ी में, तो वो जब तक चलेगा पेट्रोल तो चलेगा, और जब खत्म हो जाएगा तो वो 5 लीटर का हम चाहे कि कुछ कम से कम 3 लीटर उपयोग कर ले फिर से, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुमने उपयोग किया वो खत्म, और फिर उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इन द सेम वे वी कैन नॉट यूज कोल अगेन। कोल कोयला, कोयला होता है, कोयले का उपयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है, और उनको एक बार उपयोग किया और आग उसमें से बन गई और जल गया, जलने के बाद उसमें वो फिर दोबारा नहीं बचता, राख होकर के खत्म। तो ये क्या है, these resources are called non-renewable, जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, उनको non-renewable resources कहते हैं। Do you understand? यस, recyclable resources, those minerals which can be reprocessed and used again and again, like minerals, iron, copper, etc. like mineral जो है आयरन, कॉपर, ये मिनरल्स जो है आयरन, कॉपर, इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तुमने मान लो एक साइकिल तुमने खरीदा, उसको तुमने चढ़ा, उपयोग किया, पुरानी हो गई, जंग लग गई, खराब हो गई, और उसको कबाड़ी को दे दिया, कबाड़ को दे दिया, ले गया। अब क्या करेगा उसको, वो व्यक्ति ले जाकर के बेचेगा, जहां लोहा फिर से रिसाइकल, हाँ, उसको बना देते हैं, वो उसको गला देंगे, वो जो कबाड़ ले जाता है वो फिर से उसको गला करके और क्या करेगा, उसको फिर से लोहे में बदल देगा और फिर उससे कोई दूसरी चीज बना देगा। इसी प्रकार से कॉपर है, तांबा, तांबे का तार है,
है ना, और तांबे के बर्तन बनते हैं, ये पुराने हो गए, टूट गए, फूट गए, तो इनको फिर गला करके और फिर उनका उपयोग हम करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, जिनका बार बार उपयोग हम करते हैं। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी समाप्त नहीं होते। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी, वो हमेशा उपयोग उनका होता रहता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता, है ना, उनको भी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। Those resources which are not exhausted even if they are used, यहाँ तक कि उनका उपयोग भी हो गया तब भी वो समाप्त नहीं होते। दैट इज सोलर एनर्जी, ओशियन वाटर। सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पता नहीं जब से सृष्टि की रचना हुई होगी तब से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। हम सब लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई। सोलर एनर्जी आज भी सूर्य उसी प्रकार की रोशनी देता है, उसी प्रकार की गर्मी देता है, उसी प्रकार की हमको ऊर्जा देता है। तो मतलब कभी वो खत्म ना होने वाली, इनएग्जॉस्टेबल, उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जो कभी समाप्त न होने वाले रिसोर्स। इसी प्रकार से ओशियन वाटर, समुद्र का पानी को ऐसा कहा जाता है कि समुद्र का पानी न तो घटता है न बढ़ता, समुद्र भरा है। तुम जानते हो कि 71 पार्ट में, इस हमारी धरती का पूरा वर्ल्ड का जो धरती है तो 71 पार्ट में वाटर है एंड 29 पार्ट में लैंड। पानी अथाह है, भरा है पानी ही पानी। समुद्र में जाओ, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो पानी ही पानी दिखेगा, हाँ, जिसका कुछ अंत नहीं, अनंत। हाँ, तो वो उसको उसमें भी कभी घटता बढ़ता नहीं है। उससे तुम जाके 2-4 घड़ा पानी ले लोगे समुद्र से तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, है ना। या 2-4 घड़े ही नहीं, 2-4 ड्राम, 2-4 ड्राम मोटर ही लगा दो तुम 10 पावर का, खींचते रहो, 24 घंटे चला दो, तब भी वहां कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, समझ गए। तो ये समुद्र भी जो है, समुद्र का भी पानी जो है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है ना। yes, ये दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, है ना। ये कभी जो इनएग्जॉस्टेबल, ये जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, है ना। और तुम घड़े 2 घड़े उसकी क्या बात करते हो, बादल वहां से ही पानी लाते हैं और पूरे जगह जो वर्षा करते हैं, इतना पानी बहा देते हैं बादल, पूरी धरती में इतना पानी बहता, तब भी उधर का पानी नहीं घटता, है ना। yes, हाँ, यही पानी यहाँ बरसा देते हैं बादल और फिर बहा करके वही पानी चला जाता है वही समुद्र में, और न उधर कुछ पता नहीं चलता कितना घटा, कितना गया, कुछ पता नहीं चलता। वहाँ उतना तो उतना ही पानी है ना। तो ये therefore these are the example of inexhaustible resource. Classification on the basis of distribution. Easily available resources which are available everywhere. For example, oxygen in the air. तो देख लेना कितना टाइम हो गया, 43 और बैटरी देख लेना 37%। ठीक। बंद कर।